السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے آپ کو یہ اہم خبر دیں کہ کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں طیارہ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی غفلت کو حادثے کی بنیادی وجہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کپتان نے لینڈنگ پروٹوکول کو فالو نہیں کیا۔ رن وے سے ٹکرانے کے بعد طیارہ نہ روکنے کی ذمہ داری ATC پر عائد کی گئی تھی۔ مزید اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، سما کے نمائندے نور الامین دانش اور اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے نور، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں طیارہ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی غفلت کو حادثے کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ سما کے نمائندے نور الامین دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور، بتائیے گا اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے نور، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، کوشچن ریپیٹ کیجیے گا۔ جی نور، بتائیے گا اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا؟ جی دیکھیں، یہ کراچی طیارہ حادثے کی جو رپورٹ ہے یہ منظر عام پر آئی ہے۔ وفاقی وزیر ہیں غلام سرور خان، ان کو یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس میں جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے اور جو پائلٹ ہے ان کی آپس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو وجہ قرار دیا گیا ہے اس طیارہ حادثے کی۔ اور اس رپورٹ میں کچھ یوں کہا گیا ہے کہ جب طیارہ جو ہے وہ اس نے لینڈنگ کی ہے، اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ وہ رن وے سے ٹکرایا ہے۔ تو اسی دوران جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کا یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ بتاتا کہ طیارے نے یہاں پہ 3 دفعہ نیچے لگا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ٹیک آف کیوں کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو بظاہر CCTV فوٹیج ہے اور جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے مطابق یہی لگتا ہے کہ جو کیونکہ بہت زیادہ ہائٹ پر تھا طیارہ، اور یہی گفتگو بھی سامنے آئی ہے، تو جب طیارے کو نیچے لانے کا کہہ رہا تھا ایئر ٹریفک کنٹرولر، تو اس دوران جو پائلٹ ہے کیونکہ اس نے جلدی کی اور جلدی سے طیارے کو نیچے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں مخصوص وہاں پر لانے کی جب کوشش کی، تو اسی دوران جو ہے وہ لینڈنگ گیئر کھولنا بھول گیا، جس کے بعد طیارہ جو ہے نیچے لگا ہے۔ 3 بار چنگاریاں اٹھی ہیں اور اس کی فوٹیجز بھی سامنے آئی تھیں۔ تو اسی وجہ سے جب طیارے نے ٹیک آف کیا اس کے بعد دوبارہ، تو یہ اس کے بعد حادثہ پیش آیا ہے۔ شاید کچھ انجن میں اس کے بعد خرابت پیش آئی۔ تو رپورٹ میں یہ اب جو ہے یہ وفاقی وزیر کو پیش کر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے اوپر کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اچھا نور، ایک چیز اور واضح کر دیجیے گا، یہ ابتدائی رپورٹ ہے اور حتمی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے؟ جی دیکھیں، یہ ابتدائی جو سارا یہ واقعہ پیش آیا تھا، باہر سے ٹیمز نے بھی وزٹ کیا تھا، CCTV فوٹیج اور تمام جو شواہد تھے اس سارے واقعے سے متعلقہ، ان تمام شواہد کی روشنی کے بعد ایک جو ابتدائی طور پر ایک حتمی اور جامع جو رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ جو وفاقی وزیر ہیں غلام سرور خان ان کو پیش کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ سارے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کوئی کمیٹی بنتی ہے یا بالکل دیکھنا ہوگا کہ اس پر مزید کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طیارے کا حادثہ کب ہوا، کیسے ہوا اور اب تک اس کی کیا تفصیلات سامنے آئی؟ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، بتائیے گا تفصیلی طور پر۔ جی رمیز، اگر دیکھا جائے کہ 22 مئی کو یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا، جو یہ طیارہ لاہور سے اڑان بھری تھی اور کراچی پر اس کو اترنا تھا، تو 2:37 پہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے۔ پہلی دفعہ یہ آ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، لیکن اپروچ اہیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ رن وے پہ جہاں اترنا تھا اس سے آگے ہوتا ہے۔ جب یہ لینڈنگ کرتا ہے یہ طیارہ، بدقسمت طیارہ، تو اس کے بعد بیلی لینڈنگ ہوتی ہے، یعنی اس وقت کہا گیا تھا کہ اس کے جو لینڈنگ گیئر ہیں وہ نہیں کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے طیارہ جو ہے اسپیڈ کی وجہ سے وہ جا کے گراؤنڈ سے رن وے پہ جا کے ٹکراتا ہے۔ 3 دفعہ یہ ٹکراتا ہے، پہلے رائٹ سائڈ سے، پھر لیفٹ سائڈ پہ، دونوں انجن ٹکراتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیک آف پائلٹ جو ہے مار دیتا ہے، پھر اس کا ٹرن اراؤنڈ مارتا ہے، ٹرن اراؤنڈ مار کے لیفٹ سائڈ سے جاتا ہے۔ اور جو ایئر ٹریفک کنٹرولر جب دوسری دفعہ ٹرائی کرنے جا رہا ہوتا ہے تو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ 110 کی ڈگری پہ جائے اور 3000 فٹ پہ جائے، تو مینیج نہیں کر پا رہا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیمیج ہو گئے تھے انجن، اور یہ 1700 یا 1800 فٹ سے اوپر نہیں گیا۔ بار بار وہ وہاں سے ATC ان کو بول رہا تھا کہ وہ آپ 3000 فٹ جو ہے مینیج کریں، لیکن وہ 1700 یا 1800 فٹ سے اوپر نہیں گیا۔ یہ بھی ہم نے دکھایا تھا، جو اپروچ ریڈار سے جو باتیں ہو رہی تھی وہ گفتگو بھی بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد جو پائلٹ نے اینڈنگ بات ہوئی تھی اور جو افسوسناک واقعہ ہوا کہ دونوں انجن فیل ہو گئے ہیں، اس نے بتایا تھا پائلٹ نے، اس کے بعد میڈے کر کے یہ حادثہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو تحقیقات ہوئی ہیں، یعنی 22 مئی سے لے کے اب تک تو اس میں طیارے کے ملبہ بھی اٹھایا گیا، وہاں پہ بہت سارے ہوئے، کیونکہ یہ علاقے میں جا کے گرا تھا، جو ماڈل کالونی میں جنا کالونی وہاں پہ یہ گرا تھا۔ وہاں کے جو 21 مکانات متاثر ہوئے تھے، وہاں کے متاثر
مسافرین بھی اب تک پریشان ہیں. لیکن یہاں پہ پی آئی اے کی جانب سے ابھی یہ ہوا ہے کہ گزشتہ روز جو 21 مکانات ہیں ان کو 6 مہینے کا کرایہ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں. لیکن ابھی تک وہاں پہ جو مرمت کا کام ابھی نہیں ہوا ہے کیونکہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب جو ابتدائی رپورٹ جو اب تک منظر عام بالکل اشرف، اب یہ اہم ہوگا کہ وہ بہت سارے سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں اور اس واقعے کے بعد اٹھتے رہے، کیا ان کے جواب آ گئے؟ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. ایویشن ایکسپرٹ ہیں سلطان محمود حالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے سر کہ کپتان نے لینڈنگ پروٹوکول کو فالو نہیں کیا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی شکریہ. افسوسناک واقعہ ہے، لیکن جو آپ سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی خصوصاً جس دن طیارے کا حادثہ ہوا تھا اس کے اگلے دن بھی، اور میں نے یہی خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اس طیارے کے کپتان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جو ہے لینڈنگ پروٹوکول ہے اس پہ عمل نہیں کیا، اور اس میں بظاہر جو ہے وہ دونوں کی غلطی نظر آتی تھی کہ طیارے کے کپتان کی بھی یا عملے کی اور ساتھ ہی ایئر ٹریفک کنٹرول کی. اب یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آ گئی ہے کہ طیارے کے کپتان نے جو ہے پہلی دفعہ جب لینڈنگ کی کوشش کی تو اس میں 2 باتیں نمایاں نظر آئیں جو کہ ظاہر ہے پہلے بھی ہمیں اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اب ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک تو لینڈنگ کا جو پروفائل ہوتی ہے اس سے وہ اونچے تھے اور تیزی سے وہ انہوں نے نیچے آنے کی کوشش کی، لیکن ٹچ ڈاؤن ان کو کرنا چاہیے تھا رن وے کے ابتدا میں، وہ انہوں نے نہیں کیا اور وہ تقریباً نصف رن وے تک جب پہنچ گئے. اور دوسری جو انہوں نے غلطی کی کہ وہ غالباً اپنا جو ہے لینڈنگ گیئر اتارنا بھول گئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ بھول گئے، ایئر ٹریفک کنٹرول نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی. اور اب یہ جو گفتگو جو پائلٹ اور کو پائلٹ کے درمیان کی ہے اس وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا کو پائلٹ نے ان کو یاد دلانے کی کوشش کی یا نہیں، اور ایئر ٹریفک کنٹرول نے تو ظاہر ہے ان کو یاد نہیں دلایا. تو سلطان صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں، قطع کلامی کی معذرت، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں جب ابھی بھی آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاؤٹ ہے، تو بہتر نہ تھا کہ وائس ریکارڈر کی جسے ڈیکوڈ ہونا تھا جو بلیک باکس ہے اس کا انتظار کر لیا جاتا اس سے پہلے کہ کسی کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا؟ دیکھیے ابھی جو گفتگو جو ڈیکوڈ ہوئی ہے وہ تو پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان ہے نا، لیکن جو پائلٹس کی آپس میں گفتگو ہے اس کے بارے میں یا کم از کم اس پہ روشنی نہیں ڈالی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیکوڈ ہو گئی ہو اور اس رپورٹ کا حصہ ہو، لیکن اب یہ تو جو ماہر ہوا بازی مطلب وزیر ہوا بازی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی وہ کیا بات تھی، کیونکہ ہم اس میں بہت سی باتیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کسی کے اوپر بھی پورا ملبہ ڈالنے سے پہلے آپ کے پاس سارے ثبوت سامنے آنے چاہیے، اور یہ ثبوت بڑا ضروری ہے کہ دونوں پائلٹ کے آپس میں. سلطان صاحب جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک پائلٹ تو جان سے چلا گیا، ایئر ٹریفک کنٹرولر اور ان سے منسلک لوگ کیا سمجھتے ہیں کتنی فیصلہ کن کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ تو مجرمانہ کارروائی ہونی چاہیے نا، کیونکہ اس میں انسانی جانیں گئی ہیں اور ایک انسانی جان بھی بہت قیمتی ہوتی ہے. یہاں تو 107 کے قریب جانیں ہیں، اور یہ بالکل مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اس نے اجازت مانگی ہوگی کہ میں نے لینڈ کرنا ہے، اور یہ پائلٹ کی کال میں شامل ہوتا ہے. بہت سارے زاویے ہیں جن کے جواب شاید اس رپورٹ میں آ گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ مزید آنے والے دنوں میں بھی دیے جائیں گے. بے شکریہ سلطان محمود حالی صاحب، اس سے تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اشرف خان اور نور الامین دانش، آپ دونوں کا بھی بے حد شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر ہوا بازی غلام سرور نے ملاقات کی ہے. وفاقی وزیر برائے ہوا بازی نے کراچی طیارہ حادثے کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی ہے. اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے مشیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کی، اور وفاقی وزیر برائے ہوا بازی نے کراچی طیارہ حادثے کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی ہے. تو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پائلٹ اور ساتھ ہی ساتھ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. مزید اس پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے عباس شبیر سے. عباس بتائیے گا. جی، غلام سرور نے کراچی طیارہ حادثے کی جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے اس حوالے سے وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا ہے. کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان کی اور غلام سرور کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں
जो इब्तदाई रिपोर्ट है जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कप्तान को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है, वो वजीर आजम को बता दिया गया है और वजीर आजम से वो इब्तदाई रिपोर्ट शेयर कर ली गई है। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कप्तान ने लैंडिंग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। रनवे से टकराने के बावजूद तैयारे को ना रोकने की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर होती है। तो ये तफसीली रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई है और प्राइम मिनिस्टर ने गुलाम सरवर को हिदायत की है कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर तमाम नुकात जो है इब्तदाई रिपोर्ट के शेयर किए जाएं। कुछ ही देर बाद ये बताया गया है कि इस मुलाकात के बाद गुलाम सरवर खान पार्लियामेंट जाएंगे, जहां पे ऑन गोइंग सेशन के दौरान वो इस तहकीकाती रिपोर्ट को शेयर करेंगे। ठीक है, अपडेट्स के लिए बेश शुक्रिया अब्बास। दीगर अहम मामलात का जिक्र, सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह को शहबाज गिल का जैकबाबाद के अस्पताल का दौरा हजम नहीं हुआ। बोले अस्पताल के जिस हिस्से का उन्होंने दौरा किया वो अभी मुकम्मल फाल नहीं। अस्पताल में न सिर्फ कोरोना के लिए अलग वार्ड है बल्कि NICVD के तहत दिल के मरीजों के लिए भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शहबाज गिल की तरह PTI में बहुत से लोग ऐसे हैं जो धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और माथे पर एक शिकन तक नहीं आने देते। ये बहुत सारे इस तरह के हैं जो फितना, फसाद, फितूर, शोशे, झूठ जो बोलते हैं वो बड़ी ढिठाई से बोलते हैं और एक माथे पे शिकन तक इनके नहीं आती। और ये वतीरा है PTI का शुरू से कि वो इस तरह के झूठ बोल के उन्होंने देखे पूरी आवाम को मामू बनाया और हुकूमत बना ली। जिम्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हॉस्पिटल के जिस हिस्से का वो दौरा कर रहे थे और उन्होंने जिसका क्लिप चलाया वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं ये नहीं है कि ये सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें और दीगर को छोड़ दें, वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन अभी बेहतरी की ज़रूरत है। NFC की बात हो, जब 18 अमेंडमेंट की बात हो तो हमारे वो जो एलाइज हैं फेडरल गवर्नमेंट के वो वहाँ पे बात नहीं करते, वहाँ पर इनको सांप सूंघ जाता है, वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं करते, वहाँ पे वो जी हजूरी वाली बात करते हैं। और जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त हुई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जरदारी, हुसैन लवाई, अनवर मजीद और दीगर पर 7 जुलाई को फर्द जुर्म आयद होगी। इसी की अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक। जी देखिए, पार्क लेन के बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है उसमें भी आसिफ अली जरदारी और दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से और इस सिलसिले में तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अदालत की जानिब से जारी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जो मुलजमान जेल में हैं कराची और रावलपिंडी, उन पर वीडियो लिंक के जरिए कोरोना की वजह से फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि आसिफ अली जरदारी और दीगर मुलजमान जो हैं उनको जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। और एहतसाब अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि कराची के जो मुलजमान हैं उनके लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची वहां के अस्पताल में वीडियो लिंक का इंतजाम यकीनी बनाएंगे, जबकि रावलपिंडी जेल में मौजूद मुलजमान के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ये इंतजाम मुकम्मल करेंगे और मुलजमान की शिनाख्त भी करेंगे। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये जो बुनियादी रेफरेंस था जाली अकाउंट्स केस का, ये वही है जो तकरीबन अब 1.5 साल से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मौजूद था। इसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद वो जमानत पर रिहा हुए थे और इसमें उनके खिलाफ कई अहम वादा माफ गवाहान भी जो है वो मौजूद हैं इस केस में। जबकि इस केस में इससे पहले जो फर्द जुर्म की तारीख थी वो इसलिए मुकर्रर नहीं की जा सकी थी कि जो अनवर मजीद इसमें एक शरीक मुलजम है ओमनी ग्रुप के सरबराह। अहम ये मामला है और अहम मोड़ की जानिब अब ये बढ़ रहा है। बेहद शुक्रिया सुहेल रशीद, में आप कर रहे थे। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना मुश्किल कर दिया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां लोड शेडिंग नहीं हो रही और इस बार के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की कमी का बहाना बनाया है। दिन का सुकून रहा ना रात का चैन। कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया तो शहरी पसीने से शराबोर हो गए। दिन रात घंटों लोड शेडिंग से कराची के बासी अजियत में मुब्तला हैं। शहरी कहते हैं कोरोना के बायस करंतना में मौजूद अफराद शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक तो कोरोना से गवर्नमेंट बोलती है कि घरों में छुपो, कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अब घर में आओ तो लाइट नहीं है, बिल देखो तो आफत है इनके। 2 घंटे सुबह होती है, 2 घंटे शाम को होती है। इतना परेशान खवातीन घरों में पसीने में बुरी तरह हवा हफ्स होता है। एक तो
गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मुतासिर है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पुरानी सब्जी मंडी, सफूरा गोट, गुलशन जमाल घंटों की लोड शेडिंग से मुतासिर है। यही नहीं, सदर, लाइन्स एरिया, सोल्जर बाजार में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। मलीर और कोरंगी में भी केबल फॉल्ट के नाम पर घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक फिर एक बहाना ले आई। तर्जुमान का कहना है फर्नेस ऑयल में कमी के बायस पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग बंद ना की तो सख्त एक्शन की तरफ जा सकते हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने यह खबरदार कर दिया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करें तो वफाकी वजीर कहते हैं वफाक के मामले पर सिंध हुकूमत कैसे एक्शन ले सकती है। के इलेक्ट्रिक के इस इकदाम की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहा है, हमारे जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं इम्तियाज़ शेख साहब, वो उनके साथ बात भी कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ने भी उनसे बात की है और इस मामले में हम अपने लोगों के साथ हैं और किसी भी सख्त कदम की तरफ भी जा सकते हैं। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन से मुतालिक भी कोई ख़ास इनिशिएटिव्स ऑन ग्राउंड नहीं थे और उनके फंड्स को लेवरेज करते हुए हुकूमत किस तरह से समाजी तहफ़्फ़ुज़ में ज़्यादा फंड्स डाले उसका भी कोई निज़ाम खातिर ख़ां निज़ाम नहीं था। तो आपकी डायरेक्शंस के मुताबिक हमने 3 इनिशिएटिव्स शुरू किए और आज वो तीनों इनिशिएटिव्स जो हैं वो पाए तकमील को पहुँचे हैं और उन पे काम का आगाज़ हो चुका है। तो आज आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि आपको उस पर एक ब्रीफिंग दी जाए। आज कमरे में मेरी टीम के अलावा हमारे साथ आपके 2 फोकल पर्सन्स भी मौजूद हैं जिनके साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स फोकल पर्सन फॉर पीएम्स कोविड फंड और पीएम्स फोकल पर्सन ऑन पनागा। इसके अलावा आज हमारे साथ 6 डोनर्स मौजूद हैं जिनको मैं बाद में आपकी इजाज़त से रिकग्नाइज़ करूँगी। तो प्रेजेंटेशन प्लीज़। नेक्स्ट वन प्लीज़। सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने 2 किस्म के दरवाज़े रखे हुए हैं। अगर सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हुकूमत पाकिस्तान के एहसास कैश प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहें तो उनके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर्स कोविड रिलीफ फ़ंड लॉन्च किया हुआ है और वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया हुआ है कि 1 रुपये के साथ अगर कोई डोनर 1 रुपया डालेगा तो हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ 4 रुपये अपने ख़जाने से डालेगी और इसकी जो यूटिलाइजेशन होती है वो एहसास कैश के ज़रिए होती है और एहसास कैश जैसे कि आपको मालूम है एक बहुत ही गैर सियासी बुनियादों पे एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम कोविड-19 के तनाज़ुर में जारी है और उसकी तमाम तर ट्रांसपेरेंसी और डिटेल्स जो हैं हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इदारा कैश ना देना चाहे मगर इन काइंड सपोर्ट करना चाहे, मिसाल के तौर पे राशन देना चाहे, लंगर खाना लगाना चाहे, पनाहगाह लगाना चाहे, तो उनके लिए हमने 2 तरह के पार्टनरशिप का बंदोबस्त किया हुआ है। एक ऐप के ज़रिए जो उनकी जोग्राफिक लोकेशंस को मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर इस वक्त वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर रही हैं। मुल्तान में तब्दीली सरकार बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के जिनको कंट्रोल ना कर सकी। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटों तक लोड शेडिंग जारी है जिससे शहरी और कारोबारी तबका परेशान है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। मौसम तब्दील होते ही बिजली का बदतरीन बहरान एक दफ़ा फिर सर उठाने लगा। मुल्तान के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। बढ़ती लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन और कारोबारी तबका परेशान है। 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इसकी वजह से हमारा काम बहुत मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कारीगरों की दिहाड़ियाँ भी पल्ले से देनी पड़ रही हैं। गैर इलानिया तवील लोड शेडिंग ने दिहाड़ीदार मजदूर तबके के लिए रोजगार को भी मुतासिर कर रखा है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से घर बैठे रहे महीना 1.5 महीना। अब 2-6 घंटे लाइट नहीं होती, एक आधा घंटा आती है, आधा घंटा नहीं होती। क्या दिहाड़ी निकालेंगे, क्या घर रोजगार चलाएंगे, बड़ी परेशानी हुई पड़ी है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करके इनकी परेशानी को कम करे। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान।
कोयटा समेत बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग से मामलात ज़िंदगी मुतासर होने लगे। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिब्बी 46, नुकुंडी 45, गवादर और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। गर्मी बढ़ते ही कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। शहरी कहते हैं 6 की बजाय 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली तो कम आ रही है, ये कारोबार बिजली की वजह से बंद है सब कुछ। ये हुकूमत से ये है कि बिजली सेटिंग हो सही हो जाए, ये कारोबार उसकी वजह से चल पड़े हमारा। कैस्को से मायूस शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के सबब इनके मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जनरेटर रखा हुआ है, ठीक है, उस पर इतने खर्चे हैं, फ्यूल के खर्चे हैं, लेकिन नहीं होता गुजारा, अभी क्या करें। तर्जुमान कैस्को का कहना है कि कोयटा में बिजली चोरी और लोड मैनेजमेंट की वजह से बिजली की इजाफी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के 7 बड़े इलाकों को मुकम्मल सील करने की तजवीज़ सामने आ गई है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन और डिफेंस को मुकम्मल सील किया जाएगा। दानियाल उमर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर इंतजामिया का एक्शन। लाहौर के 7 बड़े इलाके सील करने की तजवीज़ दे दी। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, डिफेंस, गुलशन रावी और अंदरून लाहौर शामिल हैं। मुकम्मल सील होने वाले इलाकों से कुल 3613 कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। मुजव्वज़ा इलाकों में 96,229 घर, 2,33,000 खानदान, जबकि 10,69,000 आबादी है। दूसरी जानिब महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में मर्द कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मजमूई केसेस में 45,000 मर्द और 20,000 से ज्यादा खवातीन कोरोना से मुतासिर हुई। सूबे में कोरोना से 71% हलाकतें मर्दों की हैं, जबकि 29% खवातीन की हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इलाका मकीन कहते हैं बाजार और कामकाज बंद होने से बहुत मुश्किल में है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। पाकिस्तान में कोरोना की वबा फैलने का खदशा अरूज पर। अवाम को मोजी वायरस से बचाने के लिए तब्दीली सरकार की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी। रावलपिंडी में सादिकाबाद, खुरम कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, ढोक काला खान और ढोक कश्मीरिया समेत दीगर इलाके सील। अशिया खुर्दनोश की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स के अलावा कुछ भी खुला नहीं। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए जगह जगह पुलिस के नाके। शहरी कहते हैं रोजगार बंद होने से नौबत फाकों तक पहुंच गई। दुकानदार, रेडी बान, ज़हनी मरीज बन चुके हैं घरों में और फाका कशी की सूरत हाल है घरों में उनके। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में चंद हजार की हुकूमती इमदाद से घर भर के अखराजात भला कब पूरे होते हैं। ना ही बाहर निकल सकते हैं, ना ही कोई मजदूरी कर सकते हैं, ना ही बच्चों का पेट पाल सकते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन में नरमी पैदा भी करे, साथ गरीब लोगों और सफेद पोश लोगों का ख्याल रखे। गवर्नमेंट ने 12-12 हज़ार रुपये दिए। अब जिस घर में एक आदमी किराएदार है 15,000 रुपये किराया देता है, वो बच्चों के लिए करेगा या मकान का किराया देगा। कोरोना से बचाव का वाहिद तरीका है एहतियात, लेकिन मुआशी तौर पर कमजोर शहरियों की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी भी है। पेशावर के 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन शहरी किसी पाबंदी को खातिर में नहीं ला रहे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हैदर। पेशावर में कोरोना वायरस में इजाफा। सूबाई हुकूमत ने सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। गैर जरूरी नकल और हरकत पर पाबंदी आयद कर दी, जिसे शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। अब तक यूनियन काउंसिल आसिया, शिनवारी टाउन, सेक्टर F3, फेज 6 और गुलबहार समेत 9 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। इतना वो रश है अंदर, और बाकी ये नया मास्क ना वो ग्लव्स होते हैं लोगों के, तो ये कि ये हुकूमत जो कर रही है ये हमारे फायदे के लिए कर रही है। सूबाई हुकूमत ने पेशावर के मजीद इलाकों और बाजारों में लॉकडाउन की तैयारी कर ली है। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मारूफ जाकिर और आलिम दीन अल्लामा तालिब जोहरी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अल्लामा तालिब की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मारूफ जाकिर, खतीब, जय्यद आलिम इलामा तालिब जोहरी का सफर आखरत। नमाज जनाजा में ताहद्दे निगात सर ही सर नजर आए।
अंचोली इमाम बारगाह से मुत्तसिल अमरोहा ग्राउंड खचा खच भर गया। इलामा मुस्तफ़ा अजीज ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। नमाज जनाजा में समाजी और सियासी शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने इलामा तालिब जौहरी की वफात को मुआशरे के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। एक इतना बड़ा खला कायम हुआ है अल्लामा तालिब जौहरी साहब के विसाल से। बराह रास्त आप चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। तो मैं पहले तो ये एक वो अब बात कर रहा है वो पाकिस्तान का फंड रेज़र जो कि 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा है पाकिस्तान में। तो मुझे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा है पैसा देने का, शायद कोई भी नहीं इसको पूरी तरह समझता जो मैं समझता हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी जब मैं शुरू हुआ पैसे इकट्ठे करने, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा एक अजीब मेरी ज़िंदगी में एक तजर्बा था कि मैं सोच कुछ और रहा था और हुआ कुछ और। सोच ये रहा था कि मैं पाकिस्तान के उस स्कूल में गया जिधर सबसे अमीर पाकिस्तानी पढ़ते थे, तो मैं तो समझ रहा था कि उधर से पैसा मैं इकट्ठा कर लूँगा क्योंकि सारे अमीर लोग थे। लेकिन आखिर में पैसा मुझे आम लोगों ने दिया, वो लोग जो भी आपने बात की खुर्शीद ने, कि जो छोटी डोनेशन ये जो हमारा 4.5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है, इसमें 50% छोटी डोनेशंस हैं, तो आम लोगों ने डोनेट किया। तो ये एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का, और ये इसलिए है कि ये अल्लाह में मानते हैं और आखिरत में मानते हैं। क्योंकि मुझे शुरू में नहीं समझ थी कि मैं सोचता था पैसे वाले लोग तो पैसे नहीं दे रहे, तो आम आदमी पैसे दे रहा है जिसके पास है ही कुछ नहीं और कम है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये हमारी कौम का जो अल्लाह से कनेक्शन और आखिरत से है, इसकी वजह से लोग पैसा देते हैं। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा, और मैं 30 साल में किसी ने इतना पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया, तो जो हमेशा मैंने देखा सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग देते हैं जिनमें अल्लाह में ईमान और आखिरत में ईमान है। और ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर किया। जब पाकिस्तानी कौम का कभी भी कोई चैलेंज आया, एक तो मैंने जब लोगों के पास किया कि कोई कैंसर हॉस्पिटल ही हमारे मुल्क में, कैंसर का मरीज़ इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर ही नहीं सकता आम आदमी, तो उसके लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि पैसे वाले लोग भी बाहर ना जाएं, और जो यहाँ हैं उनको भी, बेचारे गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका मुफ्त इलाज हो। बड़ा चैलेंज था। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जो शौकत खानम है। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये एक मौजज़ा है कि कैंसर हॉस्पिटल जिधर सबसे महंगा इलाज है, वहाँ 75% मरीज़ों का मुफ्त हर साल इलाज होता है। और वो इलाज होता है जो कि डेवलप्ड मुल्कों के कैंसर हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 75% मरीज़ों का मुफ्त कैंसर का इलाज करें। तो वो इसलिए होता है कि इन्हीं लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, पाकिस्तानियों ने, और यही लोग उसको चला रहे हैं। और जो हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना था, आज उसका खसारा 75% कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करने में जो उसका खसारा है सालाना, वो 12 अरब रुपया है। तो 70 करोड़ के हॉस्पिटल में 12 अरब रुपए का मुफ्त ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये एक ट्रिब्यूट है अपनी कौम की कि एक दफ़ा लोगों को ये एतमाद हो जाए कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो ठीक जगह जा रहे हैं, वो चोरी नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कौम जितनी खुले दिल की है और जिस तरह ये खैरात देती है, मेरे नहीं ख्याल में दुनिया में और ऐसी कोई कौम है। और हम वैसे भी पाकिस्तानियों को दुनिया के टॉप उन मुल्कों में समझा जाता जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। तो अब मैं अपना दूसरा तजर्बा आपको बताता हूँ कि जब ज़लज़ला आया 2005 में और फ्लड आया 2010 में। फ्लड आया तो मैंने वो सारा जो इलाके देखे नीचे तक दरिया सिंध के साथ, वहाँ भी लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम मैंने एक चीज़ देखी कि एक जगह सारी दुनिया पहुँच जाती थी जब पता चलता था, मसलन
بالا کوٹ پتہ چلا جی بالا کوٹ بالکل ڈسٹرائے ہو گیا. تو مجھے یاد ہے میں دوسرے دن جب بالا کوٹ کیا تو 3 میل کا ٹریفک جیم تھا بالا کوٹ. 3 میل تک لوگ گاڑیوں میں سامان لے کے جا رہے تھے دینے کے لیے. اور پھر جب میں نے زیادہ اسی زلزلے کے علاقوں میں پھرا تو پتہ چلا یہ کہ جدھر تو لوگوں کو سنتے تھے سنی سنائی باتوں پہ وہاں تو لوگ پہنچ جاتے تھے, لیکن جدھر نئی لوگوں کو پتہ چلتا تھا وہاں بیچارے لوگ بھوکے, کوئی گاڑیاں لوٹ رہے ہیں, وہ بیچارے بھوک سے برے حال تھے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی فلڈز کے اندر کہ ایک طرف فلڈز میں سارے اتنا سامان لوگوں کو دے دیا کہ وہ بیچنا شروع ہو گئے, اور دوسری طرف بیچارے لوگ بھوکے تھے. تو تب میں نے فیصلہ کیا اور میں نے ڈاکٹر ثانیہ کو کہا کہ یہ جو اب کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, یہ لاک ڈاؤن نے جو سچویشن کریٹ کی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. ایسا دنیا نے کبھی اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی. ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو پہلے ہمارے مشکل حالات سے نکل رہے تھے, لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں میل لمبے کیوز بنے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے, خیرات لینے کے لیے. امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے, کیونکہ یہ کبھی ایسی ہوا ہی نہیں دنیا میں. اٹلی کے اندر لوگ بیچارے بھوکے ہیں, لوگوں کو کھانے دیا جا رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا. جیسے ہی ایک دم بند کیا ملک, اور بشیر صاحب آپ نے کہا میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا, کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بیچارہ دیہڑی دار ہے, جو غریب آدمی ہے, جو چھابڑی والا ہے, جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ, تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا. جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک دم ایک پینک سی ہو گئی, سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے. وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے, ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے, ووہان سٹی چائنا میں اور حالات ہیں, ہمارے حالات ہی اور تھے, لیکن ہم نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا. شکر ہے میری بات سن لی. اس کے بعد حالانکہ میرے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر موڈی نے کر دیا لاک ڈاؤن, اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں. اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ. آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے. 34% جو ریسرچ آئی ہے, 34% عوام اس وقت یا بھوکی ہے یا بیماریوں کی طرف جا رہی ہے یا بھوک کی طرف سے اس غربت پہ جا رہی ہے جو کچلے جا رہے ہیں غریب لوگ. تو ہم نے وہ لاک ڈاؤن کیا, لیکن اس کے باہر اثرات ہیں, اور اثرات یہ ہیں بالکل جو ابھی محمد علی طبع نے بات کی کہ سروس سیکٹر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا. ہوٹلز بند, شادیاں ہال بند, جو بھی کھانے پینے, ایک بہت بڑا سیکٹر 30% پاکستان سروس سیکٹر ہے. تو اس لیے میں نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ شروع کیا. اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم ایک تو بالکل نیچے غریب لوگ ہیں ان تک تو احساس پروگرام سے, اور جو بالکل عاطفہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کیش اتنے تھوڑے وقت میں اتنے شفاف طریقے سے اتنے زیادہ لوگوں میں بانٹا گیا. تو وہ تو میں ثانیہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو خاص مبارک دیتا ہوں. وہ تو اللہ آپ کو, ہم تو علیحدہ مبارک دیتے ہیں جو اللہ اس کا آپ کو دے گا, اس میں آپ کو بلیس کرے گا, آپ کے لیے نعمتیں بخشے گا, کیونکہ تو اللہ کا کام آپ نے کیا اور اس کی وجہ سے اب ہم بچ گئے ہیں. نہیں تو آج شروع میں آپ کو لوگوں کو یاد نہیں, پہلے 3 ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں, گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے. یعنی غریب گاڑی والوں کو کئی دفعہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بیچارے. تو وہ جو آپ کا کیش پروگرام جو آیا تو اس نے بہت بڑا ایک ریلیف دیا. اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائم منسٹر فنڈ ہے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ گئے, مثلا آپ
जो क्वालिफाई नहीं करते एहसास प्रोग्राम में, लेकिन वो सर्विस सेक्टर में कोई वेटर है, कोई काम कर रहे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, तो उनको कैसे हम तो उसके लिए फिर हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने हमने ये फ़ैसला किया कि हम उनको अपने टाइगर्स को अपने वॉलंटियर से उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। वो हमने पोर्टल फॉर्म किया और उन तक फिर अब पैसा पहुंच रहा है। और मैं भी अभी लड़काना गया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने देखने के लिए, और उधर मैंने यही देखा कि वो बेचारे कोई तरखान है, कोई दर्जी है, कोई और कई मुझे अफसोस हुआ कि लड़काने में कोई उसमें से 20% छाबड़ी वाले थे। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया हमने। यानी वो तो सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे ही है, तो वो तो सबसे आसान तरीका था कि लोगों तक खाना पीना भी पहुंचता रहे और बेचारे उनके भी पेट, तो वो भी बंद कर दिए। तो दूसरा हमारा ये जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड, इसका सिर्फ मकसद जो लोग बेरोज़गार हो गए उनका इन्फॉर्मेशन है, उनको पैसे पहुँचाएँ। और जिस तरह 1 रुपया जो डोनेशन आती है, 4 रुपये हम गवर्नमेंट उसके ऊपर ऐड करती है, और ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। लेकिन जो आज सानिया ने जो डोनर्स को इकट्ठा किया, डोनर्स को उनके साथ, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम एक पूरी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दें लोगों को, कि जो लोग भी मदद करना चाहते हैं उनको पता तो चले कि वो मदद किधर करनी है, किधर किधर मुस्तहक लोग हैं। तो वो जो पूरा मैप बनाया हुआ है और पूरी स्पॉट्स बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ लोगों को ज़रूरत है, ये मेरे ख़्याल में ये सबसे बेहतरीन काम है। और ये हमें मुसलसल करना चाहिए। यानी हमें गवर्नमेंट, हमारी जो व्यू है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है, हमने जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, हमें सबको याद, फिर से मैं बार बार दोहराता हूँ, दुनिया की पहली फलाही रियासत बनी थी और उसका मकसद ही ये था कि बजाय सारा पॉलिसी बने ताकतवर के लिए, निचले तबके को उठाने की कोशिश करें। तो वो ये कदम है जो कि हम कॉन्स्टेंटली ये इंशाल्लाह जब कोरोना का भी ख़त्म भी होता है तो तब भी हम ये मुसलसल डोनर्स को और जो जिन इलाकों के अंदर लोग मुस्तहक हैं उनको हम खुद ही जोड़ते रहेंगे, ताकि गवर्नमेंट बीच में ही ना आए। एक तरफ डोनर है, वो डायरेक्टली दे पैसे उधर जिधर के मुस्तहक लोग हैं। और फिर जो आखिर में ये जो लंगर और ये जो हमने पनाहगाह बनाई हैं, ये तो हमने कोरोना से पहले ही इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि पाकिस्तान में जो लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, क्यों सड़कों पे सोते हैं? सर्दियों की इंतहा होती, जब ठंड या इस्लामाबाद में 0 डिग्रीज पे होता है तो बेचारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए होते हैं। लाहौर में हम शुरू से भी देखते हैं, दाता साहब के बाहर वहाँ सारी सड़कों के ऊपर लोग सोए हुए होते हैं। तो ये एक हमारे माशरे के लिए इतनी शर्मनाक चीज़ है कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि ये बेचारे लोग, पहले तो पूछे सड़कों पे क्यों सोए हुए हैं। सड़कों पे वो इसलिए ज़्यादातर सोते हैं, वो आते हैं काम ढूंढने शहरों के अंदर। शहरों में क्यों काम ढूंढने आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पाले होते हैं, वहाँ उनके पास पैसा नहीं होता। अब वो शहर के अंदर अगर वो उनको जब दिहाड़ी लगानी है उन्होंने और उससे बच्चों को पालना है, तो उनके पास कितना पैसा होता होगा कि वो एक किराए पे जगह भी लें, फिर उन्होंने खाना भी खाएं, तो उनके पास कितना पैसा बचता होगा अपने बीवी बच्चों के लिए। तो उधर से हमने ये पनाहगाह का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बजाय वो सड़कों पे सोएं, हम उनको इज्जत से एक जगह पे ठहराएं, उनको नहाने के लिए हो, उनको पानी हो, उनको खाना मिले। तो उससे क्या हुआ, जब आप उधर पनाहगाह में, और मैं बड़ी अपनी पार्लियामेंटेरियंस को, मैं मिनिस्टर्स को कहता हूँ कि आप ज़रूर पनाहगाह में जाके उनके साथ खाना खाएं और पूछें उनसे कि आपके क्या मसले हैं। और ज़्यादातर पता चलेंगे कि वो दूर दराज इलाकों से या शहर से उधर से आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है रहने के लिए, लेकिन वो जो पैसा सेव करते हैं अपने बीवी बच्चों को भेज देते हैं। तो ये बिगिनिंग है जो मेरी विजन है कि इंशाल्लाह इंक्रीमेंटली हम अपने मुल्क को लेके जाएंगे, जिसमें रहम हो, एहसास हो अपने उस तबके का जो अपनी मदद नहीं कर सकता। और ये भी आपका आरिफ बड़ा अच्छा आपका आइडिया है कि, और मैं भी ये सोच रहा था कि हम थोड़े और ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो हम ये जगह बाकायदा जगह बताएंगे जिधर बाहर से लेबर आता है, जिधर उसको चाहिए होता है ठहरने का, जिधर
काम करने की जगहों के पास फिर हॉस्पिटल्स के अंदर। अब कई दफ़ा हॉस्पिटल्स में हमने देखा है कि बड़े हॉस्पिटल में बाहर से लोग आते हैं, उनके लवाकिन, वो तो मरीज़ अंदर होता है तो लवाकिन के पास जगह नहीं होती, वो बेचारे बाहर सो रहे होते हैं, उनके लिए तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अब इंक्रीमेंटली इंक्रीज़ करते रहेंगे ये पनाहगाह पाकिस्तान में। और हम लोगों को, और मैंने ये भी देखा है कि लोग खुद ही खाना भेजना शुरू हो जाते हैं। जब लोगों को पता चलता है पनाहगाह है, इलाके के लोग जाके वहाँ देगें भेजनी शुरू हो जाते हैं, खाना भेज, तो क्योंकि लोगों में जज्बा है। एक बार एतमाद हो कि पैसा चोरी नहीं हो रहा तो लोग बहुत खैरात देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।